circular motion. So see, if you see here, when a particle moves in a plane such that its distance from a fixed point remains constant and its motion is called a circular motion. So basically you are moving around in a circle, then that is a circular motion. Okay. Also, every motion, suppose you see this car is going in a straight line. Okay, this car is going in a straight line. So with respect to this B, it is not moving in a circular motion, right? But at every instant, suppose the car is somewhere here. Suppose the car is somewhere here. Okay. At this instant, the car has a velocity like this. The net velocity of the car is like this, right? Sorry. The net velocity of car is like this, yes. Okay. Now, what you do is, listen carefully, okay? First, you join the car, the moving object, and the observer, okay? Joined by a line, okay? This is the line of joining, okay? Then the next thing you have to do is, after you have joined them, the velocity of the car, you have to take components. One component in direction perpendicular to the velocity. So you have to make axis like this. One axis is in this, so this is y axis or whatever axis, y or x, whatever you call it. The other is like this. Understood? Axis banana samajh mein aa gaya? Okay. Now, this velocity red one will be having two components along this axis. One will be like this, and another one will be like. Do you understand this? Everyone, hello. Yeah, sir. Okay. Now see. आयुष तुम्हारा वीडियो ऑन नहीं होता क्या? सर क्या? एक मिनट. देखो, ये वेलोसिटी है. सो इसका एक कंपोनेंट ऐसा है, which is इसको बोलते हैं v पैरेलल. ओके, पैरेलल बोलेंगे क्या? ये परपेंडिकुलर बोलेंगे. नो, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे. इसको बोलेंगे v परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे v पैरेलल. ओके, v पैरेलल भी बोल सकते हैं और कभी-कभी इसको एक्सियल वेलोसिटी भी बोलते हैं. एक्सियल मतलब एक्सिस पे, इस एक्सिस पे. ठीक है, दिस इज योर एक्सिस. अच्छा, एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी ना v पैरेलल और v परपेंडिकुलर में, among these two velocities, which velocity is responsible for the car going away or closer to the observer? Which velocity is responsible for the car, the distance between the car and the observer? V क्वेश्चन सुन लिया? perpendicular. हाँ, v पर नहीं बेटा, देखो v परपेंडिकुलर तो ऐसे समझो. देखो v परपेंडिकुलर इसलिए नहीं है आंसर. सपोज एक सर्कल बनाओ इमेजिनरी. ठीक है, ओके. तो सर्कल बनाया मैंने इमेजिनरी. ठीक है, और ऐसे सर्कल बनाया. ठीक है, इसका सेंटर क्या है? ये पॉइंट है. ठीक है, सेंटर ये पॉइंट है. तो देखो, ये सर्कल के टेंजेंशियल है ना v परपेंडिकुलर. इट इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल. और बेटा एक चीज सही रख लो, इसका नाम एक्सियल नहीं है, इसका नाम रेडियल है. गलत बोला था मैंने, एक्सियल. इट इज रेडियल. along the radius है ना, रेडियस. So which velocity is perpendicular to decrease or increase the distance between the two objects, the observer and the object, the car? देखो, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो भी होती है वो तो इसको ऐसे लेके जा रही है ना, टेंजेंशियली.
अगर कोई चीज टैंजेंट में जाते रहे, सर्कल के टैंजेंट में तुम चलते रहो, ऐसे चलते रहो हमेशा, तो क्या तुम्हारा डिस्टेंस चेंज होगा क्या सेंटर से? नहीं होगा, हाँ got इसका it. मतलब which velocity is radial velocity is V, responsible yeah, parallel to change the relate relative approach or relative receding between the observer and the car. Okay, and tangential velocity क्या है? Tangential velocity वो velocity है जिसकी जितनी तेजी से वो सर, अगर तुम एक imaginary circle assume करो इस पॉइंट पे, तो वो सर्कल के ऐसे कितना तेजी से भाग रहा है. Okay, that means this velocity v perpendicular is responsible for, इसको बोलते हैं angular velocity. ये एंगल चेंज कर रहा है ना बस, समझ में आया कि नहीं? got it sir. तो एक काम, हम एक चीज डिफाइन करते हैं, उसका उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम होता है ओमेगा. ओमेगा इट इज आल्सो कॉल्ड. Sir, can you wait for 1 second? I'll be back in 1 second. Okay, sir. Hello. ओके, ठीक है. ओके, सो अभी बात करते हैं. देखो, ओके, ये लिख लिया ना, बना लिया सबने? देखो अभी Yes sir. देखो यहाँ पे क्या लिखा था, कार इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू द man A, but the man B continuously rotates his face to see the car. So with respect to man A, d theta by dt is 0. Yeah, देखो इसकी वजह से ओमेगा इज 0. ओमेगा मतलब the v perpendicular is 0, right? Because of a v perpendicular is 0, right? Yes sir. और v parallel कितना है because of a? Constant हाँ, V. which is v, correct, which is constant. अब देखो, अभी मैं तीसरा ऑब्जर्वर बना रहा हूँ, वो तीसरा ऑब्जर्वर सी है, और सी के आसपास ऐसे गोल गोल घूम रही है कार गोल गोल घूम रही है, ठीक है, सी के आसपास विद वेलोसिटी कांस्टेंट. वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड बोलना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाती है. सो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है कार वी. अब विद रिस्पेक्ट टू सी, व्हाट इज वी पैरेलल? 0. वेरी गुड, 0. एंड व्हाट इज वी परपेंडिकुलर? वो V. हाँ, मतलब आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वी परपेंडिकुलर इज वी ना, हाँ. है ना? तो समझ में आ ये नहीं गया? समझ आता, ये क्या? पैरेलल और ये परपेंडिकुलर. बोलेगा, विश्लेय बोलेगा. Okay, so like when it's along a circle, the velocity or speed, it's v tangential, and when it's like the motion responsible for a straight line is v radial. बहुत गंदा समझा. So like when both the velocities combine, that time it's circular motion. Like I'm not entirely sure. ओके. देख, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी भी ऐसी है ना. हाँ. अगर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसी होती, नेट वेलोसिटी, ठीक है, तो ये कार को इस सर्कल से ये दूर भी ले जा रहा है और आगे भी ले जा रहा है. मतलब इसके दो कंपोनेंट हैं. हाँ. इस ब्लू वाली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ऑरेंज कंपोनेंट और एक होगा रेड कंपोनेंट. रेड कंपोनेंट रेडियस को बढ़ा रहा है, करेक्ट. हाँ. तो ये वी रेडियल है, और जो ऑरेंज कंपोनेंट है ये भी टेंजेंशियल है.
अच्छा अब श्रेय, अब से ना हम लोग वो परपेंडिकुलर और वो नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रेडियल और टेंजेंशियल, ओके, क्योंकि वही देयर आर द करेक्ट टर्म्स व्हिच आर यूज्ड. अच्छा तो मतलब अच्छा ओके, तो दैट ब्लू वन इज रेडियल एंड टैंजेंशियल. हाँ वो तो नेट वेलोसिटी है ना इसकी, इस पॉइंट पे. हाँ वी नेट कितना होगा, वी नेट कितना होगा, वी आर वेक्टर प्लस वी टी वेक्टर ना. हम्म और तुमको वी नेट का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करोगे, वो दोनों परपेंडिकुलर है ना, वी आर और वी टी. Yeah, V1 square plus V2 ठीक है, square. ये भी लिख लो. और ये एग्जांपल लिख लेना है, तभी समझ में आएगा. अगर ये सर्कुलर में घूम रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो v radial is 0 but v tangential is the mod is velocity is v whatever it is speed. Hello, hello. हाँ सर. Yeah, have you written this? या Yes, sir. So okay, so see, understanding the omega is you have to understand the omega as well. कि what is this omega, देख लो क्या होता है. Omega is a first vector, okay. Now it is an angular vector. It's an angular vector and all angular vectors. So omega है angular vector. Then omega के बाद आएगा omega speed, angular velocity हुआ. उसके बाद एक आएगा थीटा, डेल्टा थीटा और थीटा. दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद फिर एक आएगा अल्फा, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन. तो लाइन से बता रहा हूँ ये क्या है. डेल्टा थीटा हुआ, बोलो. Angular displacement, angular velocity, Omega. and angular acceleration. अल्फा. इसके बाद और आएगा, इसके बाद और आता है एंगुलर. आई भी एक होगा, आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद एक और होता है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का नाम होता है एल, एल, ठीक है. एंगुलर मोमेंटम भी होगा. तो ये सब ना एंगुलर वेक्टर होते हैं. और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे होता है, एक नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है, वो तो नॉर्मल जैसे डायरेक्शन एरो दिखा देते हैं. एंगुलर वेक्टर का डायरेक्शन याद रखना कैसे होता है. एंगुलर डायरेक्शन होता है कि अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है और सपोज वो P से इस सर्कल को, इट इज रोटेटिंग ऑन दिस सर्कल, ओके, एंड इट गोस फ्रॉम P टू P डैश, ओके, इट गोस फ्रॉम P टू P डैश. देन व्हाट यू डू इज, तुमको राइट हैंड स्क्रू रूल पता है, राइट हैंड वो जो ये वाला रूल, ये वाला रूल. हाँ हाँ सर. मैं अपने हाथ से दिखा रहा हूँ. तो वो रूल में क्या करना है, यू हैव टू curl your fingers in the direction of the motion of the particle. ठीक है. तो आपका जो पार्टिकल है वो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है. इस केस में ऐसे करोगे तो जो थंब का डायरेक्शन है बताओ किस तरफ है, इन विच डायरेक्शन टू थंब, टुवर्ड्स अस. क्या तुम इस एक्सिस में बता सकते हो कि किस तरफ एक्सिस, के मतलब सॉरी की कैप. हाँ, जेड एक्सिस की तरफ है ना. ठीक है. तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है, ऐसे डायरेक्शन देता है, ओके. इन सब चीजों ये भूलना मत आगे इसमें, ठीक है. इन सबका डायरेक्शन ऐसे ही होता है, ओके. तो देखो इसमें हम देख सकते हैं कि इफ द पार्टिकल वाज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी सीक्वेंसली, देन द ओमेगा विल बी इन व्हिच डायरेक्शन, माइनस दैट. अबे घड़ी ये देखी ना तुमने, हिंदी में क्या If it's clockwise, it's क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है भाई. anti-clockwise to K. Yeah. प्लस तो जेड ओनली जेड. अच्छा प्लस के क्या, और अगर क्लॉकवाइज माइनस है.
इस समझ में आ गया? हाँ। तो अच्छा इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड बहुत इजी है, डेल्टा थीटा का मैग्नीट्यूड कितना होता है? डेल्टा थीटा का भी डायरेक्शन ऐसे देते हैं, ठीक है। हम तो अगर सपोज ये ना 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे आ गया तो इसका जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम देखो, अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे क्यों करते हैं, व्हाई डू वी डू दिस। तो हम क्या बोलेंगे 30 डिग्री क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? अगर हम अभी तक ये नहीं पता होता तो क्या बोलते हैं 30 डिग्री क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? अभी यहाँ से यहाँ गया है 30 डिग्री क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन नाउ इफ आई टेल यू कि देखो एक पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी, उसका ओमेगा ऐसा है कि 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो तुम ये तो बता दोगे कि वो सर्किल में से घूम रहा है, बट तुम ये नहीं बता पाओगे कि वो किस प्लेन में घूम रहा है, इन विच प्लेन इट इज रोटेटिंग, क्या वो एक्स वाई प्लेन में, कि वो वाई जेड प्लेन में, कि जेड एक्स प्लेन में, नहीं पता है। बट अगर तुमने उसको बोला कि उसका एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 30 डिग्री और के क्या है, 30 डिग्री के क्या है, दैट मींस द परपेंडिकुलर वेक्टर इज के क्या है, एंड देयरफॉर यू इन वन, इसी से पता चल गया कि द वेलोसिटी इज, इट इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन, राइट। So this tells you that it is moving in XY plane. समझ में आ गया कि नहीं? हाँ। चलो चाहिए बताओ कि अगर मैं एक वेलोसिटी इस तरह लिखता हूँ which is like this, लिखता हूँ वेलोसिटी नहीं है, सॉरी, डेल्टा थीटा वेक्टर which is pi by 4 और माइनस जे क्या, तो तुम मुझे कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन बताओ कि कैसे घूम रही है इस प्लेन में और कैसे। It's moving anti-clockwise in like ZX plane. एक्स प्लेन, ZX plane. जेड एक्स, तो ये मान लो एक्स वाई और जेड एक्जेक्ट प्लेन में घूम रही है ना, Yeah. और कैसे घूम रही है, इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो है आपका जो करीन वेक्टर है, नीचे जा रहा है, तो आपने कॉइल कैसे किया होगा, ऐसे किया होगा, यानी कि वो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना, है ना? Yeah. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. एक बार फिर से फिगर बना देता हूँ। ये तो आपका x, ये y और ये z, तो एग्जैक्ट प्लेन में ऐसे बनाना चाहिए। अच्छा ये डेल्टा थीटा है, मतलब ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बता सकते हैं कि इससे जो मैंने बोला था -π/4 कि इसमें कितना, कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे खत्म किया? तो वो नहीं बोल सकते हैं. वो नहीं बोल सकते, हाँ करेक्ट है, वो नहीं बोल सकते कहाँ से स्टार्ट किया। हो सकता है उसने यहाँ से स्टार्ट करके 45 यहाँ पे खत्म किया, 45 हो सकता है उसने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म किया। इन सबका डिस्प्लेसमेंट्स का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो यही होगा, ठीक है। तो यू फाइंड इट। तो अगर मुझे डिस्क्राइब करना होगा कि वो पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ तो मैं क्या बोलूंगा फिर अलग से? अलग से क्या क्या सोचो जल्दी से, फिजिक्स पढ़ लिया भाई, काइनेमेटिक्स सब पढ़ लिया। सर क्या है क्वेश्चन? अगर मुझे डिस्क्राइब करना है, मुझे इन दोनों केसेस में डिफरेंशिएट करना है, मुझे क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? वेलोसिटी, टाइम। वेलोसिटी टाइम की देना पड़ेगा। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं तुमको और ये भी पूछ रहा हूँ कि देखो इससे इस इंफॉर्मेशन से यू कांट मेक आउट कि व्हिच ऑफ दिस इज रेडियस। रेडियस भी नहीं होता, रेडियस दोनों का सेम, दोनों का रेडियस सेम। क्वेश्चन समझो पहले, what other information apart from this I should give you so that you can differentiate between A motion, motion of A and motion of B, displacement of A, displacement of B. There So we can't, like, we can only write that it's between A and B. We can't
अरे तो कुछ specifying फिजिक्स it. वाला कुछ ऐसा बोलो ना, वेक्टर कोई एक चीज फिजिकल क्वांटिटी जिससे ए और बी में डिफरेंशिएट हो जाएगा यार बहुत इजी। डिस्प्लेसमेंट इसका इनिशियल पोजीशन बोल दो ना बस। इनिशियल पोजीशन दोनों का अलग अलग है ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। हाँ इसका कितना है, इसका कितना है ए और बी में, इसका कितना है एक वाले का। So it's 0 comma something, 0 comma x. अब ये एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है, आपसे बोलो। हाँ क्या? देखो मैंने एक्सिस बनाया हुआ है सामने, अभी तो ठीक से बोलो। एक्स 0 एक्सिस पे तो है x comma 0. एक्स समथिंग एक्स कॉमा 0 ना। हाँ हाँ तो ये है r कॉमा 0 होते हैं क्योंकि ये रेडियस r है ना। yeah ठीक है, और फॉर b के लिए ri कितना है, minus r comma माइनस 0 r कॉमा comma 0. 0। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा तो पता चल जाएगा। हाँ या फिर आप एक काम करो, आप या तो ये दे दो या फिर आप फाइनल वेक्टर्स दे दो। फाइनल वेक्टर्स क्या है बोलो, आरएफ के निकाल सकते हो। जैसे इसका आरएफ ऑफ ए बताओ कितना है, निकालो अपने आप। निकालो ये अगर 40 डिग्री घूमा है तो किस कोऑर्डिनेट पे गया है निकाल सकते हो, इजी है। और बी का भी निकालो, बी का भी आरएफ निकालो। गर्व, हेलो गर्व, यस सर। पेट खराब है क्या? सर मैं सॉरी एक मिनट। क्या हुआ तुम्हारा, तो आज कुछ बोल नहीं रहे, कुछ नहीं हुआ सर। तो बोल क्यों नहीं रहे आज? बोलना है जरूरी। हाँ आंसर देना जरूरी है ना, क्लास में हाँ बैठे हो। एक मिनट सर। आंसर बताओ जल्दी जल्दी इसका। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ही नहीं पता, तुम क्या कर रहे हो तुम? सर मैं 1 मिनट के लिए बाहर गया था। कैसे बाहर तक तुम? सर पानी नहीं लिया। ये एक्स वाई एक्सिस में चीज घूम रही है, तो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है, और ओके वो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे फाइनल में द रेडियस इज आर। What is the final angular? What is the final position of this object in A and in B? This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. टाइम इज नॉट गिवन। Like at what time the final position? ये है displacement है ये। Oh श्रेय पेरेंट्स का ईमेल आईडी बोल दो। सर मुझे याद नहीं, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है। तो पेरेंट्स की। अरे रुको रुको, अगर तुमको मेल में एक इनवाइट आएगा उसको एक्सेप्ट कर लो। 1 मिनट सर। वो क्विज़ेस का आएगा, एक्सेप्ट कर लो। सर मैं 1 सेकंड पानी भर करता हूँ।
सर क्विज़ेस का तो कुछ नहीं है। होगा होगा मेरे। गर्व गुप्ता है ना, गर्व गुप्ता ही तो नाम है। और गर्व क्या बोलते हैं तुम्हारा? मतलब गूगल क्लासरूम से आया है टेस्ट के बारे में। अभी एक बार रिफ्रेश करोगे? अब जस्ट अभी भेजा है मैंने। तुम आ गया 11th फिजिक्स आ गया आ ना? गया। उसमें अपना पेरेंट का ईमेल आईडी डाल देना जब पूछेगा तो। सर पेरेंट्स का कि मेरा? अरे पहले तुम्हारा पूछेगा फिर पेरेंट्स से भी पूछेगा। ओके कारा, आप क्या करो? कुछ डाल दिया ना? आप बंद कर दो। अब बंद कर दो उसको। शुड आई इन्फॉर्म माय मॉम? नहीं नहीं, वो तुम्हारे नाम को अपने अरे उनको कोई ईमेल वगैरह आएगा क्या? अरे तुमने पेरेंट का ईमेल आईडी नहीं डाला। नहीं डाला मैंने। बोलो क्या था? jn.parul@gmail.com। jn। जे एन। अरे जे या एन। तुम टेस्ट दोगे तब जाएगा उनके पास। ठीक है, जब तुम टेस्ट दोगे तब जाएगा उनके पास। सर मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया। ठीक है, इसका आंसर बोलो जल्दी यार, इजी है क्वेश्चन, तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो 45 डिग्री अगर कोई सर्कल की चीज घूमती है तो उसका नया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नया एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखो, अगर वो जैसे सपोज समथिंग सर्कल है, ठीक है, सर्कल के यहाँ पे आर का वैल्यू अगर वो यहाँ पे आ जाती है 45 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री, ये रेडियस कितना आवाज है अच्छे से नहीं आ रही। हेलो हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी ठीक है? बहुत बैकग्राउंड नॉइस सर बैकग्राउंड नॉइज। ओके, सो उसका आंसर कितना था? उसका आंसर था फॉर दैट क्वेश्चन, सी इफ यू आर गोइंग लाइक दिस ऑन अ सर्कल, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, so your new coordinate will be r cos 45 comma r sin 45, right? हाँ हाँ ठीक है, तो अभी देखो वहां पे उस केस में क्या था कि देर वॉज, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे था, तो तुम एक्स जेड में थे और ये वाई था। तो देखो बेटा, ये पॉजिटिव एक्स है और ये पॉजिटिव जेड है ना, so this point will be r cos 45 in x and r cos 45 in sin, r sin 45 in z, तो जगह r cos 45 i cap, ठीक है, कॉमा r cos या r sin 45
k कैप, राइट? यही तो पॉइंट है इसका, है ना? ये x है और ये z है, तो y कितना है? 0 है, तो इसका जो होगा ना कोऑर्डिनेट वो होगा r/√2, 0, r/√2। समझ में आ गया कि नहीं? दिस पॉइंट द rf फाइनल वेक्टर इन a, समझ में आया कि नहीं? सर पर रेडियस क्यों चेंज हो रहा है? रेडियस कहाँ चेंज हो रहा है? रेडियस यहाँ भी r था, यहाँ भी r है, ओके हाँ हाँ now ये यहाँ भी r था और यहाँ भी r था। इस r को लेके ही तो मैंने किया है r cos 45 sin। हाँ हाँ समझ रहा हूँ। तो स्टार्ट कहाँ से किया था? r, 0, 0 से, और पहुंच कहाँ गया? r/√2, 0, r/√2। समझ में आई ये बात? इस Yes, केस sir. में क्या हुआ था? कहाँ से स्टार्ट किया था बोलो? -r, 0, 0 हाँ, और कहाँ पहुंच जाएगा? -r/√2 x पे -r/√2 सही है, और comma 0, 0 r/√2 -r ना। -r/√2। देखो z में नेगेटिव भी तो है, यहाँ z ओह, नेगेटिव है ना ये वाला, yes. ठीक है? अच्छा चलो ये बता दो, अगर यहाँ से स्टार्ट किया होता और ऐसे यहाँ पहुंचा होता तो क्या था? कहाँ से कहाँ जाता? हाँ it'll be r/√2 comma 0 r/√2, ये x comma पे 0 r/√2 है, ये पॉइंट, ये नहीं पॉइंट मतलब that'll be r स्टार्टिंग से comma बोलो। हाँ, जो सी केस है उसमें, हाँ बोलो। r comma 0, 0 0, -r माइनस हाँ आर, हाँ वेरी हाँ गुड। और कहाँ है फाइनल आर? r/√2 r हाँ, comma 0 comma -r/√2। सही है, इसके तीनों एग्जांपल लिख लो। तो लिख लिया ना? हाँ या सर तो बता दिया करो सर लिख लिया, नहीं लिखा तो बोल दो। लिखिए सर। ओके, नाउ हाँ ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं पहले, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर वेक्टर क्वांटिटी बट फाइनाइट एंगुलर बिकॉज़ द एडिशन ऑफ, हाँ देखो मैंने तुमको क्लास में बताया था ना वो नोटबुक घुमा घुमा के, याद है ये याद है कि नहीं याद है? जल्दी बोलो। नहीं मुझे तो अपने नहीं माइक्स को म्यूट मुझे भी नहीं करके याद रखा करो, अनम्यूट ही रखो हमेशा। सर, मुझे नहीं याद। अरे देखो ये बुक लेके मैं घुमा के दिखा रहा था तुमको यार। सपोज मेरे पास एक बुक है, एक कीबोर्ड, ठीक है? अब देखो इस कीबोर्ड को मान लो ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है? दिस एक्स एक्सिस, जो वाई है, और जेड आगे की तरफ है, ऐसे ऐसे होगा। नहीं नहीं, तुम्हारी तरफ से देखोगे आवाज ठीक से आ रही है? हाँ हाँ सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाला इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है? ये ऊपर वाला वाई है, वाई, और तो जेड कौन सा होगा तुम्हारी तरफ जो आ रहा है? क्या होगा ना जेड? Yes, sir. फिर से देख लो, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ना, इसको मैं रोटेट करता हूँ। सपोज मैं बोलूंगा π/2 k कैप, π/2 k कैप, बताओ कैसे रोटेट करना है? π/2 k कैप मतलब क्या होगा कि z एक्सिस it'll ऐसे be घूमेगा ना, एंटी क्लॉक anti-clockwise ऐसे घूम जाएगा ना, and xy हाँ plane। समझ में? ये π/2 k कैप। एग्जैक्ट प्लेन हाँ और अच्छा, अभी एक्सवाई मुझे, प्लेन। हाँ अब मुझे क्या करना है, अब इसको घुमाना है। सपोज π/2 इन आई कैप, π/2 इन आई कैप, तो मेरा एक्सिस कहाँ है? एक्सिस ये है ना, हाँ और इसके अबाउट मुझे यहाँ से मुझे देखना है कि कर्लिंग ऐसे होगी ना, ऐसे होगी ना π/2, समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं? हाँ ये एक्स एक्सिस था और मुझे कैसे घुमाना है, अपना हाथ ऐसे घुमाना है ना, ऐसे कि ऐसे इस तरफ आ जाए, ऐसे ऐसे, जैसे कर्लिंग ऐसे होगी ना, समझ में आया? ऐसे होगी, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नहीं नहीं आया? नहीं समझ में आया। अभी देख देख, सुन, ये एक्स एक्सिस है, आई कैप, ठीक है, हाँ ये जे कैप है और ये के कैप है। अगर मैं इसको पाई बाई 2 के कैप घुमाऊंगा तो ऐसे घूमेगी चीज ये, हम्म और जब पाई बाई, अब ऐसे हो गई ना ये, हाँ अभी एक्सिस कौन सा, ये जेड एक्सिस है, हाँ ये वाई है और ये एक्स है। हाँ, हाँ तो अब आई मुझे पाई बाई कैप 2 आई कैप घुमाना है तो इसके अबाउट घुमाऊंगा ना, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा कि ऐसे घुमाऊंगा, कैसे घुमाऊंगा? प्लस पाई बाई 2 आई कैप, एल ऐसे बी या ऐसे? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला? ऐसे? फिर से बोलना फर्स्ट वाला से। हाँ एल ये बी फर्स्ट सेकेंड वाला, सेकंड वाला ना, सेकंड वाला, तो ये घूम के चीज ऐसे हो जाएगी ना। हाँ एल बी इन वाई जेड प्लेन ना। हाँ, वाई जेड प्लेन में हो जाएगी, वाई जेड प्लेन में नहीं है, ये एक्स ये था एक और कैप ना। वाई ये था, तो हाँ वाई नहीं, एग्जैक्ट प्लेन में होगी ना ये चीज एग्जैक्ट प्लेन में है ना अभी। यू सेड पाई बाय 2 आई कैप ना। हाँ, पाई बाय 2 आई कैप, तो तो आई एक्सिस एक्स एक्सिस ये है, वाई कौन सा था, ये वाला था ना, हाँ और जेड ऐसे था, हाँ तो ये अगर ऐसे घूम जाएगा, अभी अभी किस प्लेन में है बताओ? अभी तो मतलब YZ प्लेन में आ गया। अरे वाई जेड। गधों, ये एक्स वाई प्लेन में है ना? नहीं, एक्स वाई प्लेन में नहीं, ये एक्स है और एक्स नहीं, एक्स वाई प्लेन में है ना यार। ये देखो ना, तुम्हारे फेस दिख रहा है पूरा, और ये एक्स था और ये वाई था, हाँ तो एक्स हाँ वाई प्लेन में ना अभी। यस सर, पर हमें लाइक आई कैप चाहिए ना। आई कैप फैक्टर के अलाउंग मुझे घुमाना है इसको ना, पाई बाई 2 आई कैप एक्स एक्सिस के ओके अलाउंग करेक्ट ओके। घुमाना करेक्ट। है। हाँ 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 जैसे कि तुम्हारा जो घुमाने वाला एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस, तो ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा ना। तो मतलब जो घुमाने वाला एक्सिस है उस पर तो नहीं है ना, वो प्लेन में नहीं है ना वो प्लेन में है, अभी ये एक्स सर वाई बट। प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। ओके अच्छा, रुको एक, ये नोटबुक है, ठीक है। इस यस नोटबुक सर। में, इस नोटबुक का ना ये एक्सिस एक्स है, हॉरिजॉन्टल, याद रखना, ठीक है। हम्म और ये वाई है, जेड ये, ओके सॉरी एक्स वाई, नहीं सॉरी 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 सॉरी, एक्स है। हाँ अभी देखो, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्स, ऐसे वर्टिकल वाई, जेड हाँ ऐसे आ रहा है। बताओ अभी किस प्लेन में घूम रही है? XY। एक्स वाई, ठीक है। अभी किस प्लेन में घूम रही है? किस किस प्लेन में घूम रही है? एक्स वाई, किस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है? जेड जेड। ठीक है। अभी बताओ किस प्लेन में घूम रही है और किस एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है? हाँ वाई एक्सिस के अलोंग घूम रही है और हाँ एक्स। वेरी गुड। और ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, हाँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है ये, और किस प्लेन में है ये? XZ। वाई जेड ना। एक नहीं मिनट, एक्स जेड एक्स जेड करेक्ट। ठीक है। और जब ऐसे घूम रही है, तो अलोंग X एक्सिस और YZ। नहीं आई थिंक इट्स अलोंग जेड एक्सिस और एक्स वाई प्लेन। ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है ना, देखना भाई, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है ना, सॉरी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, नहीं है ओके हाँ। एक्स ये एक्स एक्सिस के एक्सिस। उस तरफ। अभी ओके एक्स एक्सिस यही है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, किताब कैसे भी कर लूं एक्स अच्छा एक्सिस। हाँ हाँ अच्छा हाँ, हाँ सब ठीक है। समझ। अब देखो, अगर इसमें प्लस पाई बाई 2 के कैप दूंगा, प्लस पाई बाई 2 के कैप, तो कैसे घूमेगी? This should rotate on along this y z axis and should rotate like this, ठीक है। हाँ XY। ये समझ में आ गया? यस सर। तो दूसरा, अगर अब इसके बाद मैं इसको प्लस पाई बाई 2 आई कैप लिख लो नोटबुक में, पहले मैंने दिया पाई बाई 2 आई कैप और उसके बाद दे रहा हूँ पाई बाई 2 आई कैप, तो ये भी ऐसे घूम जाएगी। समझ में आया कि नहीं भाई मेरा? अच्छा, अभी नोटबुक को फिक्स्ड एक्सेस नहीं है, एक्सेस फिक्स्ड है
इसमें नोटबुक को फिक्स नहीं है। वो ऐसे ये वाला जो एक्सिस मेरे रूम में जा रहा है वो एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है पॉजिटिव ऊपर की तरफ, और जेड अच्छा ऐसे अब तुम्हारी तरफ है। ठीक है, तो पहले मैंने दिया था, कीबोर्ड से ही समझ में आएगा कि पहले मैंने ऐसे रखी थी और मैंने घुमाया था प्लस पाई बाय 2 के कैप तुम्हारी तरफ था, तो ये ऐसे हुआ। ठीक है, ओके। Yes. उसके बाद मैंने ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से घूम के जा रहा है ना हॉरिजॉन्टल, तो पाई बाय 2 आई कैप मतलब ये ऐसे घूम गया ना, आया कि हाँ नहीं? हाँ, तो पहले but प्लस पाई बाय, ये it will be in the YZ plane ना? ये वाला जो होगा ये होगा वाई जेड, ये है, एक मिनट, ये बेटा एक्स वाई प्लेन नहीं, ये है एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है। देखो But देखो एक्स going एक्सिस ऐसे जा रहा है, हाँ जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो ये एक्स जेड हाँ प्लेन में नहीं है। but then it's rotating along the हाँ x-axis. हाँ, ये रोटेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे इसके अलोंग रोटेट करना है ना, हाँ मतलब अपने हाथ दोनों ऐसे पकड़ सकता हूँ मैं, हम्म और फिर ऐसे इसको रोटेट करना है, या तो ऐसे या तो ऐसे उल्टा। अच्छा ओके। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही तो ऐसे हो जाएगी, 90 डिग्री रोटेट करना है ना, So pi by 2 what? प्लस आई कैप मतलब प्लस पाई बाय 2 आई कैप। Okay, so in pi by 2 k cap it will rotate around along which plane? अगर अगर पहले पहले ऐसे था ना, हाँ ये मत पूछो अलोंग विच प्लेन, पूछो अलोंग विद एक्सिस। okay okay जेड along एक्सिस with किस तरफ है? मेरी तरफ तो तुम्हारी मतलब तरफ से एक्सिस आना चाहिए, मतलब एक एक ऐसे समझो कि तुमने कबाब खाया है कभी, हाँ उसमें वो जो सीख घुसा देते हैं ना, हम्म सीख कहाँ से घुसाऊंगा? प्लस के कैपिस में सीख घुसाएंगे। okay ठीक है, और फिर रोटेट करना है, हम्म तो ऐसे डंडा जो घुसाएगा वो के कैप में घुसाओगे जेड एक्सिस में। अगर डंडा ऐसे घुसा दिया इसके बीच से के कैप में, तो रोटेट ऐसे होगा ना ये फिर। हाँ हाँ अभी प्लस पाई बाय 2 के ऐसे करना है कि ऐसे करना है, वो बस इतना देखना है कि प्लस जेड एक्सिस आपकी तरफ है, ऐसे है तो इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे यानी कि ऐसे घूम जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है अच्छा, दूसरा है कि अब इसको प्लस पाई बाय 2 आई कैप यानी कि इसको सीख कैसे घुसानी है? एक्स एक्सिस के अलावा ऐसे घुसा देंगे। ठीक है, और ठीक फिर है ऐसे रोटेट करेगा ये, समझो कि कबाब में वो घुसाते हैं ना सीख, वही है बस, तो ये ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? so this is in which plane? तुम बताओ मुझे, ये एक्सिस, ये वाला एक्सिस कौन सा है? ये x axis है ये कौन सा एक्सिस है? z तो ये एग्जैक्ट प्लेन में है ना चीज, फाइनली एग्जैक्ट प्लेन में हुई ना ये। हाँ हाँ ओके समझ में नहीं आया क्या? अब ओके मतलब both the cases are differing I feel. डिफरिंग मतलब नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले मैंने ऐसे घुमाया फिर ऐसे घुमाया, हाँ दोनों सेम केस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैंने पाई बाय 2 के कैप में घुमाया और फिर इसको पाई बाय 2 आई कैप में घुमाया, ये मैं एक प्रोसेस कर रहा हूँ उसके साथ, 2 बार इसको घुमा रहा हूँ। अच्छा समझ में आया? ओके ओके कंपेयर नहीं करना है कुछ। ठीक है ओके ठीक है, और एक ये पहला केस है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट केस। दूसरे केस में क्या करता हूँ, यहीं से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन पहले पहले अभी कौन सा दिया था फर्स्ट केस में? पहले कौन सा दिया था? 2 pi by डिस्प्लेसमेंट 2 दिए ना। k हाँ, हाँ और फिर सेकंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट कौन सा दिया? pi by 2 i cap तो इस बार मैं पहले पाई बाय 2 आई कैप दूंगा और फिर पाई बाय 2 के कैप दूंगा। अच्छा ओके पाई बाय 2 आई कैप दूंगा तो एक्स एक्सिस मेरा ऐसा है, हाँ एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाऊंगा और पॉजिटिव घूमना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होना चाहिए, हम्म तो क्या होगा कि वो ऐसे होगा ना। हाँ समझ में आया? और फिर पाई बाय 2 के कैप किस तरफ था? आगे की तरफ था, हाँ आगे की तरफ है, उसमें ऐसे होना चाहिए, तो ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे हो गया ना। हाँ करेक्ट समझ समझ में गया आ गया? फिर से दिखा देता हूँ कैसे पकड़ा था। ऐसे पकड़ा था ना तुमको शुरू में, शुरू में पाई बाय 2 एक घुमा के ऐसे घुमाया, ये हुआ। ठीक है, और फिर पाई बाय 2 के घुमाया तो ये हो गया। समझ में आया? तो ठीक है दूसरे केस में कैसे हो रहा है? पहले ऐसे था तो ऐसे हो रहा है, और फिर ऐसे हो रहा है, तो फाइनली ऐसे ऐसा है। किस प्लेन में है ये? this is in YZ हाँ करेक्ट, ये वाईजेड प्लेन में, लिख लो इसको।
ये YZ प्लेन में है। और ओके, और जो पहले किया था π/2 k कैप एंड देन π/2 i कैप, π/2 k कैप ऐसे हुआ था, अभी π/2 i कैप, i कैप ऐसे हुआ था, और फिर π/2 k कैप ऐसे कुछ हुआ था ना, और फिर π/2 i कैप एंड पहले k कैप हुआ, तो k कैप में ऐसे हुआ और π/2 कैप ऐसे हुआ। सो इसमें किस ये वाला किस प्लेन में था, पहले वाला केस दिस वाज इन xz प्लेन। हाँ, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, θ1 + θ2 इज नॉट इक्वल टू θ2 + θ1। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ यहाँ पे बताओ जरा, एक्सप्लेन करो तो श्रेयस को, क्या बोला अभी, क्या किया था हमने? श्रेय हाँ सर, तो पहले हमने एक सेकंड माइक्रोफोन। हेलो, हाँ हाँ बोलो। ओके, पहले हमने सर नॉट एग्जैक्टली श्योर क्या एक्सप्लेन करना है, जो आपने अभी अभी किया वो एक्सप्लेन करना है। ओके, तो सर पहले हमने उसे एक्स वाई प्लेन में फेस किया और के कैप डायरेक्शन में रोटेट किया। हाँ, एक्स एक्सिस। अरे तुम ऐसे मेरे को बस इंग्लिश में बता दो क्या मतलब है, मतलब वो छोड़ो, एग्जैक्ट बोलो, ये इसको पढ़ लो, क्या इसको पढ़ो और इसको समझाओ, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। डायरेक्शन ऑफ कौन अरे सा उसके वाला? ऊपर वाला जो हाईलाइट है, सर वो मुझे समझ में नहीं आया। ये गर्व, समझ में आया तुमको गर्व? आयुष तुमको समझ में आया? हाँ क्या ये Yes. पॉइंट ना? हाँ ये वाला पॉइंट हाँ आई अंडरस्टूड काइंड ऑफ, मतलब जो, हाँ मैं समझा हूँ। समझाओ। हाँ Okay, I'm not sure, but then I think the the small angular displacement, मतलब जो बहुत छोटे एंगल से it is rotating, those are cumulative, but then कॉम्पिटिटिव, commutative. They can, yeah, that basically the line, the point after that. But then large angular displacement is not commutative. सर वो समझ में आ गया, पर क्यों? सर मेरा बहुत लैग हो रहा है, मुझे कुछ सुनाई ठीक से नहीं रहा है। आयुष ही पूछ रहा है क्यों, बताओ उसको क्यों। Um, I don't know exactly. अभी मैंने वही तो एग्जांपल दिया ना, तो देर से तो वही दे रहा था ना, कि पहले हमने π/2 k कैप और प्लस π/2 i कैप किया, तो देखा कि बुक कहाँ इनिशियली दोनों का स्टार्टिंग पोजीशन था, सेम था दोनों का स्टार्टिंग पोजीशन, लेकिन जब मैंने ये डिस्प्लेसमेंट दिया θ1 + θ2 और फिर जब ये दिया θ2 पे, तो अलग अलग जगह बुक एंड अप हुआ ना, दोनों केसेस में बुक एंडेड अप, कीबोर्ड एंडेड अप इन डिफरेंट पोजीशंस। यानी कि तुम्हारा स्टार्ट एक ही पोजीशन से किया, ओरिजिन एक ही है, लेकिन तुम अलग अलग जगह जा रहे हो, यानी कि दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है ना, दोनों वेक्टर्स आर डिफरेंट। और dθ1 + d ये क्यों ये तो छोटा छोटा है, छोटा छोटा ऐसे करोगे, ऐसे जाओगे तो, मतलब सपोज कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे देख रहा हूँ तुम्हारी तरफ, अब मैं थोड़ा सा ऊपर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, हाँ, अगर मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, और मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और थोड़ा सा राइट जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ dθ1 ऐसे, थोड़ा सा राइट जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा राइट, समझ में है कि नहीं? तुम्हारी तरफ पेन है और ये पेन थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा राइट जाता है, ठीक है, और अगर वही मैं उल्टा रिवर्स स्टेप में करता हूँ, पहले राइट जाता हूँ फिर ऊपर जाता हूँ, तो वहीं पे आऊंगा ना। हाँ अच्छा तो वही है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। हाँ अच्छा,
इसके बाद ये अपने आप लिख लो सारा थ्योरी, इसमें कुछ बताने का नहीं। तुमको पता है ना ये सब। सॉरी 100 150, इसको जल्दी से लिखो, जो मैं शेड कर रहा हूँ वो लिख लो। Okay, sir. फटाफट उसे कॉपी करो। लिख लिया? कॉपी कर लें तो बता देना। Sir, मैंने कर लिया. श्रेय, Yes, सॉरी sir. आयुष कर लिया? एक मिनट, एक मिनट। हाँ कर लिया सर। ठीक है।
ओके ओके, ये आंसर, ये क्वेश्चन कर लो जल्दी से। क्या बताना था मुझे? हाँ, ये तो एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पढ़ो, रिलेशन बिटवीन क्या लिखा है, ये एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर स्पीड क्या होती है? ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ठीक है, कितना एंगल कन्वर्ट हुआ है कितने टाइम में, ठीक है। और इसमें डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इसलिए है क्योंकि यू डोंट वांट टू टेक इट एवरेज, तुमको यहाँ पे थोड़ा सा लेना है, ठीक है, थोड़ा सा, जैसे कि वही है ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करते हैं, we take delta x by delta t with delta t tends to zero, right? So that you don't take an average, you take instantaneous. तो instantaneous angular velocity क्या होती है? Delta theta by delta t tends to zero, which is d theta by dt. अब इसके बाद एक चीज more, one more thing is defined, which is what is angular acceleration? Angular acceleration क्या है? कि what is the change of angular velocity with time? So alpha is d. The angular acceleration is taken as alpha, right? Yeah, it is called alpha. Because in Iridov, I saw many places it's taken as beta, and हाँ, हो भी सकता normal है। acceleration is taken as w or omega, I guess. हाँ, वो किया है इरोडोव में, ओमेगा 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 ही बोला है नॉर्मल एक्सेलरेशन को। और आई थिंक वो इरोडोव के फर्स्ट पेज पे बोला भी उन्होंने, मतलब एक अपेंडिक्स टाइप है जिसमें, क्या जो भी बोलते हैं उसको, अपेंडिक्स जो इंडेक्स टाइप है जिसमें उसने सिंबल्स के नाम बताए हैं, ठीक है। और चैप्टर के शुरू में वो बता देता है सिंबल्स के नाम। ओके, तो हाँ, ओमेगा इज डी डब्ल्यू बाई डी टी, और ऑफ कोर्स इट इज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। और ये देख लो, एस इज आर थीटा होता है ना, एस क्या होता है, द ये वाला लेंथ ना, डेल्टा एस, डेल्टा इज आर थीटा, तो आर इंटू डेल्टा थीटा, सो आर टाइम्स डेल्टा थीटा बाई डेल्टा कितना हो जाता है, ये कितना चीज है, अगर डिफरेंशिएट करोगे दोनों को, इफ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर टाइम्स डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। देखो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, क्या है वो? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या क्या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या है? एंगुलर वाला डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एंगुलर वेलोसिटी है। डेल्टा एस क्या है? इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अलोंग, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये वो है अलोंग द आर्क कितना घूम रहे हो आप, तो डिस्टेंस हुआ ना। डिस्टेंस हुआ है, हाँ डिस्टेंस हुआ, आर ये आर्क वाला डिस्टेंस है ना। हाँ, तो ये याद रखना, डेल्टा एस ये चीज नहीं है, ब्लू वाली चीज नहीं है, ब्लू वाली चीज नहीं है, ओके। ओके, डेल्टा एस रेड वाली चीज है, ओके। इसलिए डेल्टा एस का फॉर्मूला लिखते हैं आर थीटा, जो कि करेक्ट है, आर इंटू डेल्टा थीटा। क्या है आर डेल्टा थीटा? ये है, ठीक है। ओके, रेड वाली होती है, ब्लू वाली नहीं होती है, ठीक है। ठीक है। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या होगा, कौन सी स्पीड होगी? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बेटा स्पीड है, ठीक है, सर्कुलर स्पीड है, सर्कुलर स्पीड है ना। हाँ, I'll be constant if हाँ, ये कांस्टेंट है। और दूसरा एक चीज है कि इस पॉइंट पे इसका नेट वेलोसिटी भी है, इस पॉइंट पे, बिकॉज इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पे इसका वेलोसिटी भी है ना। हाँ, लेकिन एवरेज पे अगर तुम यहाँ से यहाँ की बात करते हो, यहाँ से पूरा यहाँ ए टू बी, तो ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है फिर? ये सर्कुलर स्पीड है, या इसको हम टेंजेंशियल स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ये चीज कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या है, सर्कुलर स्पीड है, सर्कुलर पे घूमने वाली, ठीक है। ओके, और आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा डेल्टा टी क्या हो जाएगा? ओमेगा, तो आर ओमेगा, तो रिलेशन आ गया वी इज आर ओमेगा, ठीक है। फटाफट लिख लो इसको। हो गया बेटा ये? हाँ, Yes, sir. ठीक है, ओके। ओके, अब ये लिख लो, ये वाला क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल वन सबको दिख रहा है ना?
Do it. Sure. Okay, sir. Hello. Sir. Yes, sir. Uh, ये वाला क्वेश्चन करना एग्जाम्पल 2.
हो गया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, ये वाला देख लो, एग्जाम्पल 3 देख लो इसको जल्दी से। Hello. क्या हो गया? कर लिया ये वाला? हाँ सर। इसका आंसर बताओ, फोर्थ का आंसर बोलो। डी। 0.7. Same. डी 0.7। हाँ, सेम क्वेश्चन है ओके, ना? Same question. सेम ही हाँ, क्वेश्चन है सेम क्या? टू सेम एग्जैक्ट। ये वाला फर्स्ट। Two 200. Is it 100? C. 200. Yeah. 100 200 200, ठीक है। करेक्ट है। थर्ड, तो एक में फर्स्ट वाला कैसे? बताओ भाई, कोई बताओ। पहले एक्सेलरेशन ढूंढते हैं, उसके बाद हाँ उसके बाद सेकंड इक्वेशन में डाल देते हैं।
Okay. ठीक है. थर्ड, थर्ड बताओ आंसर कितना है. थर्ड का आंसर इज, जो बोलो जल्दी. 0.3 है क्या? 0.3 only. I think. श्योर नहीं है. नहीं, गलत है. 0.3. ओके, एक और बार ट्राई करता हूँ. सर नहीं आ रहा. नहीं आ रहा. इसका रोटेशन स्पीड है 0.1 रेडियन पर सेकेंड. The spot of light along a distance of 3 मीटर, ये 3 मीटर है. What is the velocity of spot when theta is 45 degree? देखो, ये spot, ये इसका angular velocity is 0.1 रेडियन पर सेकेंड. तो velocity of spot ऐसे होगी spot की velocity in this direction. सी कितना है ये? 0.1 रेडियन पर सेकेंड. इस टाइम पे रेडियस कितना है? रेडियस निकालेंगे. we'll find the radius.
at this point the radius is, this is 3, this is 45. So this is 3. So the radius at this point will be 3 root 2, right? Yeah. Therefore, the velocity like this will be r omega, like this velocity. कितना आएगा? R कितना है? 3 root 2. Omega कितना है? 0.1, right? So this is r omega. V is r omega. It is 3 root 2 into 0.1. 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये वेलोसिटी ऐसे आई, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ स्पॉट ये थोड़ी ना है। वेलोसिटी ऑफ स्पॉट तो, ये स्पॉट तो यहाँ है ना मिरर पे। हाँ। तो ये वाली जो 3 रूट 2 है, इसका यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो cos 45 है ना। ये इसको कंपोनेंट में तोड़ोगे तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा हाँ। और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा ना, हाँ हाँ पैरेलल टू द मिरर और परपेंडिकुलर टू द वॉल, मतलब पैरेलल टू द वॉल परपेंडिकुलर वॉल। तो पैरेलल टू द वॉल ही बस वेलोसिटी ऑफ स्पॉट को कंट्रीब्यूट करेगा। सो 3 रूट 2 into 0.1 into cos 45 should be your answer. 0.32 0.31 है ये तो, फिर इसमें क्या बोल रहा है? ओके 3 को ए आंसर क्यों नहीं है ये? V perpendicular omega is V perpendicular by R. मुझे लगता है 1 by cos 45 होगा। नहीं नहीं सर आंसर क्या है? आंसर 0.6 है क्या? आंसर 0.6 है। कैसे? तो बोल रहा है ओमेगा इज V perpendicular by R, ठीक है। तो V So, perpendicular कितना है? it'll be V cos 45 equals 3 root 2 into 0.1 ना? फिर से बोलना। It'll be V cos 45. देखो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी लाइक दिस है वो तो 3 रूट 2 मीटर पर सेकंड है। इसमें कोई डाउट है क्या? into नहीं, point into into 0.1. 0.1, हाँ, तो 0.3 रूट 2 मीटर पर सेकंड, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये तो है, ओमेगा सेम है इस रॉड के लिए, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ओमेगा तो सेम है। अगर ओमेगा सेम है, ये 3 है तो ये 3 रूट 2 डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ना, ये 45 ये है और ये 3 है, 3 भी 45 है। हाँ, ये 3 रूट 2 डिस्टेंस भी है, 3 रूट 2 डिस्टेंस r और ओमेगा। तो यार v sin थीटा ये गलत क्यों हुई यार? ये v sin थीटा कितना है? वो भी 1 by root 2 ये ही है। 0.3 रूट 2 है ना, ये इसका वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी का यहाँ पे गलत कर रहे हैं हम लोग। वी आर सेइंग दैट इस वेलोसिटी का कंपोनेंट एक ऐसा है, अच्छा ऐसी वेलोसिटी है। The net velocity of the point at this point, समझो कि वॉल है ही नहीं, वहां पे सिर्फ स्पॉट है, एंड स्पॉट इज गोइंग लाइक दिस, स्पॉट इज गोइंग, हाँ स्पॉट का वेलोसिटी ऐसा है। अच्छा हाँ, देखो गलती है बेटा, कि जो स्पॉट है ना, स्पॉट जा रहा है ना, मान लो वॉल है ही नहीं, बस एक स्पॉट है, ठीक है, विच इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कार है, ठीक है। तो कार का इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा है? कार का वेलोसिटी इस पॉइंट पे ऐसा है ना, इस ये वेक्टर है ना नेट वेलोसिटी का, राइट है ना ये, ठीक है। और उसका जो ये तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ऐसे और एक होगा ऐसे, है ना। इसका जो ये कंपोनेंट ये हमको पता है, ये कितना है? 0.3 root 2 0.3 रूट 2, यानी कि v sin 45 इज इक्वल टू v sin 45। ओके गॉट इट। हाँ अभी ठीक है। ओके ये गलती हो गई। गलती ये कर रहे थे कि ये नेट वेलोसिटी नहीं थी, नेट वेलोसिटी तो ऐसे, कार तो स्पॉट तो ऐसे जा रहा है ना, कार ऐसे जा रही है। ओके तो इसके दो कंपोनेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, हाँ ठीक है।
अभी और पढ़ाना है क्या इसमें, और पढ़ाना है वैसे। होमवर्क लिखो चलो, ये है ना सबके पास? हाँ सर, क्लासरूम पे है ना? हाँ हाँ, फिफ्थ, सेवेंथ, सर एक सेकंड, कौन सी एक्सरसाइज है? फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, एक्सरसाइज 1 ही है ये। फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, 11, 10, 13, 12, 14, 15, 16, 17, बस इतना नहीं, 16 17 नहीं, बस इतने जितने बोले अभी तक, ठीक है। सिक्सटीन 17 नहीं है? नहीं नहीं नहीं, रुको एक मिनट। एक्सरसाइज 1 है। एक्सरसाइज 1, ठीक है सर, थैंक यू। रुको एक मिनट। ओके। एलन मॉड्यूल में तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे ना सर्कुलर मोशन के? यस सर। वो मॉड्यूल भी कर लेना, ठीक है, और डाउट पूछ लेना। ओके सर, यूनिट 3 में है क्या? ये तो मुझे नहीं पता, तुम्हारा मॉड्यूल देखो तुम सर्कुलर मैं मोशन। चेक करता हूँ अभी। एक सेकंड। यूनिट 2 का चैप्टर 4। ओह अच्छा, ओके। सारे करना है? सारे जितने मतलब कर सकते हो करना। चैप्टर खत्म हो गया है थियोरी? नहीं, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। ओके। चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।